أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आज today is the presentation days of our participants, our students, and that's the second day of presentations, and this is the fourth week of our first course, and this is the second day, and I might my CR of this class, the topper of this class, Ms. Sabah Hayat. She is the topper of AJK University, and I might please start the presentations regarding the ventilation for the environmental control poultry houses. The fact and figure, please, let's start. Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. My topic of presentation is poultry house ventilation. First of all, I give my introduction. Sabah Hayat, DVM 10th semester, University of Poonch, Rawalakot. Topic of presentation is ventilation, poultry house ventilation. We'll start from what is ventilation. Ventilation is a process to provide the clean air. Stale air is removed and to maintain the uniform conditions in the house, because 50% problems in broiler production is due to incorrect ventilation. जो proper ventilation इसलिए भी required होती है कि it directly affect on the bird growth, because if there is no proper ventilation, the bird may get excited or uncomfortable or in stress condition. As I said, if in a stress condition, then it is effect on the FCR. In stress condition, FCR decrease and effect on the growth. So proper ventilation is required for the performance of the chicks. And the second one, what is purpose of ventilation? जो मेन पर्पस है ना वेंटिलेशन का, वो है कि आपने मेंटेन करना है यूनिफॉर्म टेम्परेचर को पोल्ट्री हाउस में, और टू प्रोवाइड द फ्रेश एयर, to remove the undesirable gases. Undesirable gases like the nitrogen and ammonia, you have to maintain gases level such as the oxygen requirement 19.5 होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन लेस देन 3% होनी चाहिए, या कोई भी अमोनिया है 10 ppm से लेस कंसंट्रेशन उसकी होनी चाहिए. इसके अलावा जो भी मॉइस्चर वगैरह है ना, वो भी रिमूव करने के लिए भी हम वेंटिलेशन प्रॉपर रिक्वायर्ड होगी, या जो लीटर है उसको ड्राई रखना है, यानी एक यूनिफॉर्म कंडीशंस जो प्रोवाइड करनी है ना हाउस पे प्रॉपर, इसके लिए हमें वेंटिलेशन रिक्वायर्ड होती है. अब जो वेंटिलेशन होती है वो 2 वेंटिलेशन सिस्टम्स होते हैं, यानी एक पॉजिटिव वेंटिलेशन सिस्टम है, एक नेगेटिव वेंटिलेशन सिस्टम है. अब जो पॉजिटिव वेंटिलेशन सिस्टम है ना, इन विच ओपन शेड और द सेमी शेड्स इन्वॉल्व होगी, जिसमें नेचुरल वेंटिलेशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है सिस्टम में. Second one is negative in which control sheds are involved, and ventilation is controlled by the fans and pads. And secondly जो ventilation है उसे divide करेंगे weathers के साथ, यानी weather types पे हम उसे divide करेंगे, mean winter ventilation, summer ventilation और moderate weather ventilation. And in winter ventilation, minimum ventilation is required, while in summer tunnel ventilation, and in moderate weather transitional ventilation. What is winter ventilation or minimum ventilation? Minimum ventilation is also called as the timer-based ventilation, and then in the winter, when outside temperature is too low, and to maintain the inside temperature, we done minimum ventilation. And the basic purpose of minimum ventilation is to provide the oxygen and to remove the harmful gases. Main यही है कि हमने harmful gases को remove करना है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ना मेंटेन करना है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को हमने कंट्रोल करना है, जो कोई भी बेसिक है वेंटिलेशन का. अब जो मिनिमम वेंटिलेशन होती है मोस्टली कोल्ड एरियाज में भी होती है मिनिमम वेंटिलेशन, और विंटर में परफॉर्म की जाती है, यानी जब आउटसाइड टेम्परेचर टू लो हो और हमने इनसाइड का टेम्परेचर हाई रखना है. अब मिनिमम वेंटिलेशन में फैंस की कैलकुलेशन कैसे होगी? अब मिनिमम वेंटिलेशन अगर फैंस को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं हाउस में,
और बर्ड्स का बॉडी वेट कितना है, CFM पर केजी ऑफ द बर्ड हम देखेंगे, और जो CFM होती है ना पर केजी ऑफ द बर्ड, ये 0.5% होगी। एंड सेकेंड, उसके बाद हम फैन कैपेसिटी हमें रिक्वायर्ड होगी मिनिमम वेंटिलेशन की फैन कैलकुलेशन में। अब कैलकुलेशन ये है कि हमने जो भी नंबर ऑफ बर्ड्स हैं यानी 30,000 हैं जो भी हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे जितना बॉडी वेट है बर्ड का, यानी 1.8 है केजी, जो भी हमने उससे मल्टीप्लाई करना है, और साथ में ही मल्टीप्लाई करेंगे CFM पे, और जो CFM पर केजी बॉडी वेट जो होती है चीज़ 0.5 होगी, और इसे डिवाइड कर देंगे फैन की कैपेसिटी से। अब फैन की कैपेसिटी डिफरेंट होगी हर फैन की, आपको यानी 9,000 है या 22,500 है, 18,000 है, वो डिपेंड करेगा उस पर। हमें इसे डिवाइड कर लेना और हमारे पास नंबर ऑफ फैंस आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कि मिनिमम वेंटिलेशन में मोस्टली अगर 3 फैंस ऐसे रिक्वायर्ड होंगे, हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड वन जो होती है मॉडरेट वेदर वेंटिलेशन। अब मॉडरेट जो वेदर में वेंटिलेशन परफॉर्म की जाती है उसे ट्रांजिशनल वेंटिलेशन भी कहेंगे। अब ये ट्रांजिशनल वेंटिलेशन होती है वो इन बिटवीन होगी, यानी समर वेंटिलेशन और विंटर वेंटिलेशन में। समर मीन टनल वेंटिलेशन और विंटर मिनिमम वेंटिलेशन, और इन दोनों मिनिमम वेंटिलेशन और टनल वेंटिलेशन की जो इन बिटवीन स्टेज होगी ना, वो ट्रांजिशनल वेंटिलेशन है। अब ट्रांजिशनल वेंटिलेशन जो है वो इज डन इन मॉडरेट वेदर व्हेन आउटसाइड in inside temperature is almost equal in partial evaporating in cooling is required. ट्रांजिशनल वेंटिलेशन जो होता है मोस्टली जो फॉल इन स्प्रिंग सीजन में, जब डिफरेंस जो होता है ना डे एंड नाइट में, वो 15 से 20 डिग्री सी तक जब डिफरेंस होगा तो हम ट्रांजिशनल वेंटिलेशन करेंगे, यानी ये फील करेंगे गैप को बिटवीन हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर में। अब ट्रांजिशनल एक्चुअली मैं वेंटिलेशन में क्या होगा एक चीज कि आपको बता दूं काइंडली, जी सर। ट्रांजिशनल, ये जो ट्रांजिशनल है इट्स द बिटवीन side mode ventilation and tunnel ventilation. This is the between stage, ओके between mode of ventilation. When your ओके system सर। is switching from side mode, यानी कि inlets, to the tunnel टनल मोड। door, the जी tunnel सर। mode. And this जी this सर। this phenomena, this ventilation mode is called transitional ventilation. Transitional से आपको अंदाजा हो रहा होगा, transitional means that जी it's सर। between. Yes, yes, please. Next. सर इन बिटवीन स्टेज है। अब जो सर ट्रांजिशनल वेंटिलेशन में फैंस की कैलकुलेशन है वो हम इस तरह कहते हैं कि जो भी वॉल्यूम है हाउस का, अब वॉल्यूम जो हाउस का होता है यानी लेंथ विड्थ एंड हाइट, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 40% पे। अब जो 40% है ये एक लिमिट होती है, जो टोटल मिनिमम वेंटिलेशन है उसकी लिमिट होगी 40%, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे फैन की कैपेसिटी से, तो हमारे पास नंबर ऑफ फैंस कैलकुलेट हो जाएंगे जो हमें ट्रांजिशनल वेंटिलेशन में जितने फैंस रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम कहते हैं कि टनल वेंटिलेशन। टनल वेंटिलेशन जो है वो समर सीजन में की जाती है, यानी आउटसाइड इज टू हॉट, आउटसाइड टेम्परेचर हायर होगा इनसाइड रिक्वायरमेंट से, इन इट evaporative cooling is required along with wind chill. In tunnel ventilation, fans and pads used to maintain the temperature and inlets are closed. अब टनल वेंटिलेशन में एयर डिफेक्टर्स, जब हम टनल वेंटिलेशन में जाते हैं ना तो इसमें एक ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि हमें एयर डिफेक्टर्स लगाए होते हैं। एयर डिफेक्टर्स या पलियाँ होंगी, यानी जो भी चिक्स हैं बर्ड्स हैं उनको डायरेक्ट एयर से आपने प्रिवेंट करना है, और वो पलियाँ 40 मीटर के फासले पे 40 होंगी फीट, और इनकी इसको 7। इसको इसको आप ये 40 फीट करें, 40 फीट। ओके सर, 40 जी जी फीट के फासले पे होंगे और 7 फीट जो उसकी हाइट होगी पलियों जी, की। उसके बाद 6.5 से 7 फीट, डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द शेड, लेकिन आप मिनिमम आप 6 फीट, 6.5 फीट तक कर सकते हैं। 7, ओके सर। राइट राइट, नेक्स्ट प्लीज। इन टनल वेंटिलेशन में जो हमने जैसा कि हम तभी करेंगे जब आउटसाइड टेम्परेचर हाई होगा, तो उसके लिए भी हमें फ़ैन की कैलकुलेशन करते हैं। उसकी फ़ैन के लिए कैलकुलेशन एक नॉर्मली जो भी हमने फ़ैन की कैलकुलेशन करनी है उससे में हमें वॉल्यूम ऑफ हाउस पता होना चाहिए। वेरी वॉल्यूम ऑफ गुड। हाउस, क्रॉस सेक्शन ऑफ हाउस, डिजायर एयर वेलोसिटी एंड फ़ैन कैपेसिटी। अब हम फर्स्ट वेरी गुड। देखते हैं कि क्रॉस सेक्शन क्या है। क्रॉस सेक्शन ऑफ हाउस ये होता है कि विड्थ एंड हाइट, यानी विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, हमारे पास क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। और जो एयर वेलोसिटी होती है ना, डिजायर एयर वेलोसिटी, वो होती है लेंथ ऑफ द हाउस, यानी अगर मोस्टली हम रेकमेंड कर रहे हैं लेंथ ऑफ 450 है तो इसमें हमने प्लस
50 कुछ कर देंगे तो हमारे पास 500 फीट पर मिनट जो होती है हमारे पास डिजायर एयर वेलोसिटी आ जाएगी। एयर वेलोसिटी होती है जो स्पीड होती है एयर की जिसके साथ एयर मूव कर रही है हाउस में। अब इसके बाद हमने फ़ैन की कैपेसिटी हमें पता होनी चाहिए, जो भी हम फ़ैन ले रहे हैं उसकी कैपेसिटी 18,000 है या वो 22,500 CFM है। अब फ़ैन की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 2 फार्मूलाज़ हैं। फर्स्ट फार्मूला ये कि हमने जो क्रॉस सेक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर देना है एयर वेलोसिटी से। क्रॉस सेक्शन मीन विड्थ एंड हाइट, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एयर वेलोसिटी से जो यानी 500 फीट पर मिनट होगी, यानी हम प्लस कर देंगे इसको लेंथ में। 600 कर दें और आप, इसको जो है ना, ये जो है 500 है, इसको 600 कर दें, ठीक है ना अपने ओके नेक्स्ट। सर। जी जी ठीक सर, है, आप अभी थोड़ा अभी सा इसी डिवाइड कैलकुलेशन के करेंगे हिसाब फ़ैन से को। करते रहे, लेकिन ठीक है, आपने बड़ा अच्छा काम किया, आई रियली अप्रिशिएट इट। और ये थैंक यू आपका सर। ठीक है, आपके 8 फैन आ गए। नेक्स्ट प्लीज। डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो फ़ैन की कैलकुलेशन का हमारे पास सेकंड फार्मूला है वो हम वॉल्यूम ऑफ हाउस से भी करते हैं, यानी वॉल्यूम जो क्या लेंथ विड्थ एंड हाइट हमने उससे ले लेना है। उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ हाउस को डिवाइड कर देना है फ़ैन की कैपेसिटी से, जिससे भी हमारे पास नंबर ऑफ फैंस कैलकुलेट हो सकते हैं। यानी इन 2 प्रोसीजर से हम अपने फ़ैन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई भी हमारा पोल्ट्री हाउस है, कोई भी शेड है हमने जहाँ पे फार्म है, हम उसके एक ईजी एक मेथड है कि हम फ़ैन कैलकुलेट कर सकेंगे। सेकंड, अगर हमने एयर एक्सचेंज कैलकुलेट करना है तो एयर एक्सचेंज कैलकुलेट करने के लिए जो हाउस का वॉल्यूम है यानी लेंथ विड्थ एंड हाइट उसे डिवाइड कर देंगे टोटल फैन की कैपेसिटी से, तो वो हमारे पास आ जाएगी यानी 0.9 मीटर पर मिनट जो भी है हमारे पास एयर एक्सचेंज आ जाएगी। उसके बाद ये कि अगर एयर की वेलोसिटी कैलकुलेशन करनी है यानी एयर की किस स्पीड से मूव कर रही है हाउस में, तो उसके लिए भी यही है कि आपने टोटल फैन की कैपेसिटी को डिवाइड कर देना है क्रॉस सेक्शन से। क्रॉस सेक्शन ऑफ पोल्ट्री हाउस जो भी है लेंथ और विड्थ और हाइट जो होगी उससे हमने मल्टीप्लाई जो भी क्रॉस सेक्शन है उसे राइट, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 500 फीट पर मिनट जो हमारे पास एयर वेलोसिटी आ जाएगी जो आपकी पोल्ट्री शेड में जो आपकी एयर मूव कर रही है। ये इसके मैंने अलावा आपको हमने बताया था, अगर ये आप ये चीज आप नोट करना है अपने पास। 600 से 650 फीट पर मिनट जो है, ये डिजायरेबल हमें चाहिए एयर वेलोसिटी इन द हाउस। हमारे पाकिस्तान का सर। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, दैट्स द रीजन जी सर। कि हमें 600, और अभी हम लोग ऑलरेडी 650 पे हम लोग यहाँ पे वेंटिलेशन कर रहे हैं। हम लोगों ने जी सर। ऑलरेडी ऐसे हाउस डेवलप किए हुए हैं 3.2 3.3 मीटर पर सेकेंड। वो हम लोग ने जी सर। ऑलरेडी लेयर और ब्राइलर हाउस इस पे डिजाइन किए हुए हैं। और ये पाकिस्तान के वेदर के लिए ये है। आप देखें, ये 500 जो है यूरोप साइड पे है, क्योंकि वहां पे वैसे वहां पे तो आपको पता है कि साइड पे वहां पे नहीं है वो। लेकिन ये जी सर। एक मॉडरेट है 500, लेकिन आप अभी पाकिस्तान में 600 प्लस 650 आप इसमें आपने करना है। नेक्स्ट प्लीज। यस सर। ओके सर। सर रावलाकोट का वेदर भी वैसे इस हिसाब से कम ही आ रहा है, अगर करना चाहें ना तो, अगर पाकिस्तान की रावलाकोट में चेंज हो तो। क्या चीज कह रही है? सर यहाँ पे भी जो है ना ज़्यादातर ट्रांजिशनल वेंटिलेशन वगैरह चल रही है, यहाँ पे मतलब टेम्परेचर कम होता है, जैसा कि आजकल जो जी टेम्परेचर है ना 23 डिग्री टेम्परेचर है आउटसाइड का। जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जिस तरह मरी एरिया है, जी। एबटाबाद एरिया है, वहां पे तो 500 जो है वहां पे एक्चुअली अभी शुरू हुआ है वहां पे। मैंने 2000 में डेवलप किए थे फार्म मरी में, पतियाटा साइड पे। तो उस वक्त जी वहां पे सर। टनल का कंसेप्ट ही नहीं था, क्योंकि वहां पे टनल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। टेम्परेचर जो है मैक्सिमम 26 27 28 29 से ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा था। लेकिन अभी जी जो सर। है लास्ट 4-5 ईयर, आई थिंक 10 ईयर्स हो गए हैं, 8-10 साल, इसमें जी सर। जो है वहां पे भी टेम्परेचर जो है आपके वहां पे टेम्परेचर 40 तक जाता है वहां पे। नो, रावलाकोट में सर बहुत कम जाता है सर, आज भी रावलाकोट 23 नहीं, डिग्री मैं टेम्परेचर मरी है। की बात कर रहा हूँ कि वहां पे भी ओके हाँ 35 जी सर। 36 37 वहां पे गया। फिर हमने वहां पे टनल जो है वहां पे हमने जी फैंस सर। और इंस्टॉल किए हैं वहां पे। फिर हमने पैड कूलिंग इंस्टॉल की है हमारे पास वहां पे। जी सर। पैड कूलिंग, क्योंकि वाटर का मसला है वहां पे, लेकिन वहां पे जरूरत पड़ी है। तो जी सर। ये कंप्लीट अगर आपको चाहिए जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड या कॉम्बी टनल सिस्टम हो, कि आपका वेदर का आपको पता ना हो, तो आपका एक सेफ जी साइड सर। जो है आपको 600 पे आपने जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट सर, हमने अगर वेरिएबल जो फेन्स वगैरह ना स्पीड उनकी कैलकुलेट करनी हो तो हम वेरिएबल फेन्स अगर साइड फेन जो होते हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए ये है कि हमें मिनिमम वेंटिलेशन के लिए मैक्सिमम ये रिक्वायर्ड होते हैं। उसके लिए हम लेना है 1/3 जो टोटल वॉल्यूम ऑफ हाउस है ना उसका हमने 1/3 लेना है।
और ऐसे डिवाइड कर देंगे कैपेसिटी ऑफ फैन से, तो भी हमारे पास नंबर ऑफ फैंस आ जाएंगे। इसके अलावा होता है कि फ़ैन की जो टाइमर सेटिंग होती है ना, कि हमें कितनी देर के लिए ऑफ ऑन टाइम होगा फ़ैन का रिक्वायर्ड है, तो उसका फार्मूला ये है कि निकालने का कि CFM पर बर्ड हमने जो भी लेनी है वो हमें पता है कि 0.5 ही होगी पर केजी ऑफ द बर्ड, मतलब बॉडी वेट से होती है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बर्ड्स से, यानी जितने भी 30,000 जो भी बर्ड हैं उसे ले लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे फ़ैन की कैपेसिटी से। तो हमारे पास जो फ़ैन की टाइमर की सेटिंग की परसेंटेज आ जाएगी, यानी 30 सेकंड है, 33 सेकंड्स है जो भी है, यानी 165 सेकंड ऑन हो गया एंड 135 सेकंड जो ऑफ है। यहाँ फ़ैन की टाइमर अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो हम इस फार्मूला से कर सकते हैं, यानी और CFM ये बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय कर नंबर सकते ऑफ हैं, आप बर्ड्स। बिल्कुल कर सकते हैं, जी लेकिन सर। इसका इसका ये शर्त ये है कि आपका ये 1 kg का बर्ड हो, ये बर्ड आपका 1 kg का होगा। देखिए ये जो ओके सर। 1.5 है ना, ये पर केजी है, पर केजी मीन्स 1 जी kg सर। बर्ड। तो आपका ये बर्ड अगर 1 kg का है तो फिर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है ये। जी अप्रिशिएटेड, सर। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर आता है फ़ैन की कैलकुलेशन के बाद, हमने अगर फ़ैन कैलकुलेट हो गए तो उसके बाद हम पैड की कैलकुलेशन पे आते हैं। टनल वेंटिलेशन में हम पैड कैलकुलेशन भी रिक्वायर्ड होते हैं। पैड जब हमें रिक्वायर्ड होंगे ना सर, हमने इन्हें ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होंगे, लेकिन जब हमने टेम्परेचर एक सेट किया होगा, यानी हम पैड की तरफ जाने से पहले या टनल वेंटिलेशन में हम साइड मोड पे जाएंगे, यानी ट्रांजिशनल वेंटिलेशन पे जाएंगे। और इसमें ना 3 डिग्री का मतलब 3 डिग्री का डिफरेंस होगा, यानी फ्लक्चुएशन टेम्परेचर का मीन अगर रूम के टेम्परेचर 25 है तो हमारे पास 3 डिग्री का अगर जैसा ये फ़र्क होगा ना, तो उसमें हम पहले ट्रांजिशनल वेंटिलेशन पे चले जाएंगे और उसके बाद हम पैड में चले जाएंगे। अब टनल पैड पे हम जाएंगे तब ऑन करेंगे। आप मैं जी आपको हाँ करेक्ट सर। कर दूं कि ये जो 3 डिग्री का है, 3 से 4 डिग्री, ये मैंने आपको एक टिप दी थी। मैंने आपको बताया कि हर हमारे कोर्स लेक्चर में एक टिप होती है आपके लिए। मैंने जी कहा था सर। अगर आप चिल फैक्टर आपके ज़हन में हो, तो अगर जी फुल सर। ग्रोन बर्ड है जैसे चिल फैक्टर 3 डिग्री है, तो आप 3+1, आप 1 डिग्री, आप 4 डिग्री पे आप टनल पे चले जाएं। ठीक है, जी सर। टेम्परेचर आपका राइज हो, आपके सेट टेम्परेचर से आउटसाइड टेम्परेचर वो आपका बढ़े, हाउस का टेम्परेचर ऑटोमेटिक अगर 5, अगर 22 है, तो वो जी सर। 26 पे आपका जो है ट्रांजिशन से हो के वो टनल आपके हो जाए। टनल में आपके सिर्फ फैन चलेंगे, उसके पास जी +1 सर। डिग्री पे आपके पैड आएंगे, यानी कि 28 पे अगर वो चला गया टनल पे तो 29 पे आपके पैड आ जी गए। सर। दैट्स गुड, ठीक है। 3 डिग्री या 4 डिग्री ओके थैंक वो डिपेंड्स करता है उस पर, ठीक हो गया ये। नेक्स्ट जी प्लीज। ओके थैंक यू सर। पैड्स जो होते हैं और इसमें तभी हमने ऑन करनी, यानी टेम्परेचर वही है कि 28 से अबव होगा, और इसमें जो इनलेट्स होंगे ना वो क्लोज होंगे, कि वो वहाँ से इनलेट्स क्लोज होंगे, और ये टाइमर बेस होता है, यानी अगर हमने इसलिए ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, यानी हम 30 सेकंड के लिए अगर ऑन टाइम है तो 10 मिनट्स जो होगा ना ऑफ टाइम होगा, कि हम ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकें। जी अब बिल्कुल, उसके ये बाद है कि डिपेंड करता पैड है, की ये एरिया की। ये यस। ये एक सेकंड, ये जो है आपका जो टाइमर है ये डिपेंड करता है आपके हाउस की कंडीशन पे। अगर आपका जी हाउस सर। में हॉट अब है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज है और प्लस आपकी ह्यूमिडिटी जो है, नमी आपकी जो है ज्यादा है, तो फिर आप जो है टाइमर आप उसको ज्यादा कर देंगे, टाइमर इंक्रीज कर देंगे। अगर आपका ये जी प्रॉब्लम नहीं सर। है, और अगर आपका ये प्रॉब्लम नहीं है लेट्स सपोज, तो फिर आप जो है 5 मिनट टाइमर, 6 मिनट टाइमर, इट डिपेंड्स ऑन द इनसाइड ऑफ हाउस कंडीशन। और फिर अगर ओके ऐसा भी सर। है कि जब आपकी नमी जो है हाउस में, ह्यूमिडिटी कम है, तो फिर आप ज्यादा पैड चलाते हैं तो उसमें आपकी नमी जो है पैड हाउस की आपकी जो आपको आपको देखें, आपको आपको बताया था 50-60 से स्टार्ट होता है और 70-80 तक फिजिबल होती है। ठीक है, वैसे हमारा यस सर। टारगेट 65-70 डिग्री 70% होता है नमी का। तो इस पे हमने देखना होता है, इसी बेस पे इस डिपेंड ऑन द इनसाइड हाउस सिचुएशन। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट। ओके सर। सर नेक्स्ट आता है कि पैड एरिया अगर हमने उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो सबसे पहले तो हम पैड का साइज़ देते हैं, यानी मोस्टली 2, 4, 6 और 8 इंचज़ में आता है। मोस्ट प्रेफरेबली जो यूज़ होता है 6 इंच का यूज़ होता है। उसके अलावा हमने टोटल फ़ैन कितने इंस्टॉल किए हैं वो देखेंगे, और एयर वेलोसिटी फॉर पैड। दैट्स गुड। अब जो पैड एरिया की कैलकुलेशन है, यानी 2, 4 और 6 में 6 को देखूंगी। अगर 6 इंचज़ है तो उस पर एयर वेलोसिटी जो वो हो रही है 350 to 400 फीट पर मिनट है।
अब एरिया कैलकुलेशन में क्या करना है कि सबसे पहले टोटल फ़ैन की जो कैपेसिटी है उसे डिवाइड करना है एयर की स्पीड से, यानी जो भी आ रही है, अगर 4 के लिए तो 250 या जितनी भी आ रही है हमने उससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास एरिया आ जाएगा। यानी 450 स्क्वायर पर फीट जो आ रही है वो 6 इंच के लिए। इससे हम अपनी जो पैड की कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं सर। थैंक यू। बिल्कुल, मैं इस पे आपको एक चीज ऐड कर दूं कि हमारे जी सर। लेट्स सपोज अगर 6 इंच फैन है तो उनका 1.5 मीटर पर सेकंड डिजायर्ड एयर वेलोसिटी चाहिए होती है वहां पे, क्योंकि जी हम पैड सर। साइड पे हम एयर वेलोसिटी कम रखते हैं कि वहां पे एयर आए, मॉइस्चर कैरी करे और फिर जाके शेड पे जब जाए तो वो 500-600 फुट, जब 600 फुट पर मिनट वहां पे होगी। और यहाँ से हम इसको इसलिए डेफिनेटली आप देखिए ना, जब आप जो है एयर स्पीड डिजायर्ड एयर वेलोसिटी कम रखेंगे तो फिर आप उसका एरिया बढ़ा देंगे ना, तो ये यस सर। सारा इसका फिनोमिना है। और हर जितने भी हैं वो सब जो है वो इस चीज पे फोकस होता है कि आपका पैड के साथ आपने बड़ा अच्छा किया, आपने ये बाकी 2 इंच 4 इंच 6 इंच और सब की यस साथ सर। वेलोसिटी बता दी। तो ये डिपेंड करता है 300 350 6 का जो है, वैसे हम लोग काम की 300 तक स्विच। रखते हैं उसकी डिजायर्ड वेलोसिटी। तो उस पर बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने बड़ा इजी आपने फार्मूला बताया कि आपने टोटल फैन कैपेसिटी ले ली, डिजायर्ड वेलोसिटी जो आपको चाहिए, लेट्स सपोज अगर 300 फुट पर मिनट चाहिए तो उसको डिवाइड करें, आपका पैड एरिया निकल आएगा। उसमें आप देखें, आप अपना उसमें आप निकाल सकते हैं, आप 6 फीट के 6.5 फुट के लगाते हैं पैड, इट डिपेंड्स ऑन द जी सर। उस पे। वेरी गुड, शेड के नीचे। so thank you very थैंक यू much. सर। So great, very good. Thank you very much. I really appreciate it. You've done very well. और I think हम लोग जो हैं अभी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पे जाएंगे, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी प्रेजेंटेशन। आपने मेहनत की है, नजर आया मुझे, आपने अच्छे उसमें पिक्चर्स ग्राफिक्स आपने सारी चीजें और उस पे जो डेटा लेके आई हैं। ठीक है, तो 4 चीजें होती हैं, देखिए यही मकसद है हमारा। हमने आपकी प्रेजेंटेशन इसी रखी है कि एक ये क्लियर है, क्लियरिटी है, आपको हमने क्लियर करना है आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या आपके जो आंसर्स हैं उसमें अगर थोड़ा बहुत है तो हम क्लियर करें। दूसरा, आपको प्रेजेंट करने का जो है ना, आप अच्छे प्रेजेंटर भी बने। तो सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, सो ग्रेट, थैंक यू वेरी सर मच थैंक यू। मिस सबा, थैंक यू वेरी मच।